طرح منع کر دیتا کہ بیوی یہ کراچی کی سڑکیں ہیں، یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خون ہے یا پان کی پیک. ارے پولیس والے مجھے دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیں گے. ارے آپا اب وہ بات نہیں ہے، اب امن و امان ہے یہاں پر. اسی لیے تو آئی ہوں. جب میں نے سنا کہ تم لوگوں نے یہاں کوٹھی خرید لی ہے تو میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب میں زندگی کے باقی دن یہیں گزار لوں گی. مہرالنساء، ہائے یہ کوٹھی ہے، یہ تو محل ہے، محل. اور فرنیچر ماشاء اللہ کتنا اچھا سامان ہے. تھینک یو آپا. اچھا آپا، آپ نے وہ اسلام آباد والے گھر کا کیا کیا؟ ارے اسے کرایہ پہ اٹھا دیا. بھلا بتاؤ، وہ بھی کوئی رہنے والی جگہ ہے؟ جسے دیکھو انگریزی بولتا ہے. تمہارے مرحوم بہنوئی مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ یہ دارالحکومت ہے، انگریزی بولنا سیکھ لو. تو سیکھی پھر آپ نے؟ ہاں، یس نو اور گو ٹو ہل. ارے آپا ہل نہیں، ہیل، گو ٹو ہیل. ارے یہ بھی کوئی زبان ہے بولنے والی؟ اگر کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ہائے ہائے. ارے ہائے ہائے تو ہم ہی میں کرتے ہیں. یہاں سامان نہ رکھو اور پھپھی جان کو اوپر پہنچا دو. ہائے بیٹا، مجھے آئے دیر نہیں ہوئی اور تم مجھے اوپر پہنچا رہے ہو. ارے آپا اس کا مطلب ہے اوپر والی منزل یعنی فرسٹ فلور. اچھا تو فرسٹ فلاور کہو نا. تم لوگ جانتے نہیں کہ میں اسلام آباد سے آئی ہوں. جی بھول گیا تھا، اب چلتا ہوں. کہاں جا رہے بیٹا؟ پھپھو اسلام آباد انگریزی سیکھنے. ماشاء اللہ مہرالنساء، تمہارا بیٹا بڑا ہی سمجھدار ہے. ادھر میرے منہ سے بات نکلی اور اس پر اثر ہو گیا. لگتا ہے آپا آپ پہ ہی گیا. ماشاء اللہ. جناب یہ آپ اپنا ماتھا صاف کیجیے. حالانکہ میں نے موٹی کتابیں پڑھی نہیں، لیکن اپنی موٹی عقل سے سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری نظریں کتاب کے اوپر ہیں اور دھیان میری طرف. تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا میں، حالانکہ میں کسی لارڈ گورنر کی تبادلے بھی نہیں چاہتا ہوں. سمیرہ سے نکلوایا تھا، لیکن تم مجھ سے ملی نہیں. میں نہ محرموں سے نہیں ملا کرتی. اور وہ جو تم اتنے لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہو وہ نامحرم نہیں ہوتے. ہماری خاندانی روایت کے مطابق جس سے منگنی ہو جائے اس سے فاصلہ رکھا جاتا ہے. خاندانی روایت جانتی ہو تم، خاندانی روایت کے مطابق تو ہماری گھر کی عورتیں قدم بھی باہر نہیں نکالتی. اور تم صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ تم آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی؟ میری ہونے والی بیوی ہو تم، سمجھنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو.
हमारी रिवायत के मुताबिक तो ये बात भी गलत है। वैसे आप अपनी जागीर में और कितनों को समझ चुके हैं? बीवी को समझना और बात होती है। जो शादी से पहले समझ में आ जाए वो बीवी नहीं बांधी कहलाता है। बहुत ऊंची बातें नहीं करने लग गई हो तुम। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया कि तुम्हें आजम खान की पोती होने का गुरूर भी है। इसे फखर कहते हैं, गुरूर नहीं। सबाहत शौकत फख्र हो या गुरूर है दोनों में भी। ड्राइवर चलो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि तुम दादा से निकल करते। मैंने जिंदगी में कितना मुश्किल खुद सोचा था कि इसे किसके हवाले करेंगे। ये तो एक अहद किया है मैंने, और मैं ये अहद निभाऊंगी। इसलिए नहीं कि तुम मेरे मालिक बना दिए जाओगे, इसलिए कि मैं आगे जाने वाले रास्तों के तमाम कांटे चुनूंगी। मैं दादा साहब को यकीन दिलाऊंगी कि इंसान के लिए रास्ते खोलता है, उन्हें महदूद नहीं करता। और इसलिए कि हर औरत मेरे ऊपर की तरह रोशनी अपने साथ लेकर नहीं चली जाती, बल्कि उन्हें अंधेरों को रोशन करती है। भाई आपा, आदमी ख्वाब में अपने बाल गिरता देखेगा तो डरेगा नहीं? डरेगा क्यों नहीं? आदमी का बाल गिरना कोई कम खौफनाक बात तो नहीं। तो क्या आपको पैसे मिलते हैं? तो फिर क्या चोरी हो जाते हैं? हालांकि ये पान एक तरह से बड़ी मुफीद चीज है, लेकिन बाज औकात बहुत तकलीफदेह हो जाता है। सुनने तो दी, भाभी बता रही थी बशारत आवा को सारे ख्वाबों की ताबीर आती है। तो आपा सुनने दे। अरे वो बोल कब रही है जो तुम सुनोगी? अरे ये अंदाजा लगाने और समझने की अजियत के बजाय उन्हें उदाल दान ला के दे दो, इसमें ना से जान छूट जाएगी। तौबा है, पहले ही कह देती। आपा, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये पान खाने वाली आदत आप बिल्किस को डाल दें? आपा जरा सोचें, तसव्वुर करें, मुझे कितना सुकून मिलेगा। बल्कि आपा, हर वो शख्स आपको दुआएं देगा जिन्हें इनकी नॉन स्टॉप गुफ्तगू सुननी पड़ती है। ये लीजिए, आपका उगालदान आ गया, ताबीर बताइए। कर्जा उतरता है? जी नहीं, इनके चुप रहने से भला किसका कर्जा उतर सकता है? ओहो, मैं तो ख्वाब की ताबीर बता रही थी। ये तो बहुत अच्छा ख्वाब हुआ, महीने में 2 मरतबा देख लिया करे। कर्जा चढ़ेगा ही नहीं, उतरता रहेगा। जी, अरे ये काम तो तुम भी बहुत अच्छी तरह कर सकती हो। आखिर इस घर की प्रॉब्लम में तुम भी तो हिस्सेदार हो। अच्छा छोड़े आपा, आप एक बात बताइए, आप तो वहाँ रहती है ना, हम्माद वाली बात भाई और भाभी के कान में डाल सकती है ना? अरे अफसर मियां, तुमने तो मुझे अपने ख्वाब में उलझा दिया। मैं अपना ख्वाब तो तुम्हें सुनाना ही भूल गई। जी जी आपा। मैंने ख्वाब में देखा कि इतना बड़ा चबूतरा है और उस पर एक बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उनसे कन्नी कतरा के गुजरना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे इशारा किया। मैं डरते डरते उनके पास पहुंची तो वो बुजुर्ग बोले कि बिशारत बेगम, तुम 2 घरों की मालकन हो। इस घर का पौधा इस घर में और इस घर का पौधा इस घर में घना दरख्त बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना ना, जब तक मुझे चांदी का पानदान नहीं मिलेगा। वो बुजुर्ग बोले वो भी मिल जाएगा। क्या मतलब आपा? मतलब बहुत महंगा पड़ेगा, यानी चांदी का पानदान। मतलब ये
इधर अम्माद मियाँ ने डॉक्टरी की, उधर आसपा इस घर में दुल्हन बनकर आई। वो कैसे, ये मुझ पे छोड़ दो। अल्लाह आपा, चांदी का पानदान तो मैं आपको 2 दिन में दे दूंगी, बस आप ये बात पक्की करवाएं। अच्छा भाई आपा, मैं तो चल रहा हूँ। अरे आप कहाँ चले? भाई मैं कर्जा उतारने वाला है ख्वाब और देखा हूँ। आपा, ये बात पक्की हो जाएगी ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कह रही थी कि हम्माद का ये आखिरी साल है, फिर माशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगा। आपने नोट किया वो कुछ गुमसुम सा रहने लगा है। खाली गुमसुमी नहीं बल्कि उदास भी रहता है बेचारा। बेचारा क्यों कह रहे हैं? आखिरी साल है, साथियों से बिछड़ने का तो दुख होता ही है ना। साथियों से बिछड़ने का अफसोस होता है और किसी खास साथी से बिछड़ने का दुख। क्या मतलब? मैं इंटेलिजेंस में हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। लगता है मौसूफ मोहब्बत की वारदात में मुलविस हो चुके हैं। हाँ ये तो है। उस रिश्ते के बारे में तो सभी जानते हैं, और जो चीज मिल रही हो या मिलने वाली हो वो उदास नहीं खुश करती है। और हम्माद के चेहरे पर तो 12 बजे रहते हैं। हाँ सच ये तो है, लेकिन क्यों? आपने तो मुझे उलझा ही दिया। हम केस सुलझाया करते हैं, उलझाया नहीं करते। वैसे उसमें तुम्हारा एक दावा तो फजूल साबित हुआ। क्या मतलब? वही यही कि बहनें भाइयों के मामलात में जज्बाती हो जाती हैं और उनकी हर प्रॉब्लम बिना कहे जान लेती हैं। और तुम्ही क्या, घर में किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। वो तो हम हैं जो कड़ी नजर डाले रखते हैं हर पेचीदगी पर। तो फिर ये केस भी सुलझाइए ना। जी, केस सुलझाते वक्त मैं चाय पीता हूँ। जितना पेचीदा केस होता है उतनी जबरदस्त चाय। अच्छा बाबा, ला रही हूँ। सही सुना है कि रिश्वत के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर आतिफ। जी मैडम। बेड नंबर 17 के सारे टेस्ट मुकम्मल करा लीजिए। और हाँ, मैंने उनकी एक दवा चेंज कर दी है, उन्हें कैल्शियम से एलर्जी हो रही है। जी मैडम, मैंने नोट किया था, उन्हें स्किन रैशेज हो रहे हैं। जी इसी वजह से। मैडम बेड नंबर 62 पे चेक कर लीजिएगा, परसों उनका ऑपरेशन है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग सर। ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान नहीं। तुम कैसी हो मैडम? मैं ठीक हूँ लाला, तुम बहुत बदल गई हो। वक्त भी तो बहुत गुजर चुका है लाला। इतने बरस कहाँ भी सब कैसे? गाँव, हाँ ये मेरा दोस्त है, गांव से मेरे साथ आया, इसमें कुछ टेस्ट होना था। सॉरी, आपके टेस्ट? जी मैडम, डॉक्टर साहब ने कुछ लिख दिए हैं, कुछ अभी ले लें। शाहिद, इन्हें दोपहर के पास लेबोरेटरी में ले जाओ, सारे टेस्ट करवा दीजिए, रिपोर्ट्स लेकर मेरे कमरे में जाएगी। जी दादा, आइए जी। ऐसे क्या देखने लगा? क्या मैं आपको आपकी अपनी मेहनती लगती? मैडम, तुम तो मैडम हो गई, सारी दुनिया की कुछ काम करती है। लाला, आपके लिए, दादा साईं के लिए मैं हमेशा वही पहले वाली ही महरूम हूँ। आइए मेरे कमरे में आके बैठिए, वहीं आपके दोस्त का इंतजार रखिए। और बताए लगा, बच्चे कैसे हैं? अब तो बड़े हो गए होंगे। और भाभी कभी मुझे याद करती है? हाँ, कभी कभी याद करती है। और शबाश तो माशाल्लाह गबरू हो गया है, बिल्कुल अपने दादे जैसा। और बाबा से इतने बरसों में